Hello students, welcome back to our channel KCYC. In this video, we will be starting a new chapter in geometry. So we will be starting with your first chapter, that is similarity. So let's start with your first chapter in geometry. चलो बच्चों लोग वेलकम बैक टू अवर चैनल KCYC. टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. आज हम लोग 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. प्रीवियस वीडियो वी डिड विद ट्रिग्नोमेट्री, वी डिड मेंसुरेशन, वी डिड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. नाउ विल स्टार्ट विथ योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज सिमिलैरिटी. जो बच्चा लोग नेक्स्ट ईयर दैट इज 21 में जो एग्जाम लिखने वाले हैं, मेनी थिंग्स आर डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, मेनी प्रॉपर्टीज आर डिलीटेड, मेनी थियरम्स आर डिलीटेड. तो जैसा जैसा थियरम्स प्रॉपर्टीज आ जाएगा आई विल लेट यू नो. तो विल स्टार्ट विथ सिमिलैरिटी. नाउ दिस इज वी स्टार्ट विथ सिमिलैरिटी. नाउ बेसिकली व्हाट यू मीन बाय सिमिलैरिटी? सिमिलर, दिस इज दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल. एक होता है कॉन्ग्रुएंट, वन इज कॉन्ग्रुएंट एंड द अदर वन इज सिमिलर. Congruent is this is congruent, similar is everybody know this is what we get. If the shape and the size, अगर shape and size दोनों same है, shape और size मतलब exactly same है, that is congruent. Only the shape is same, the size is not same, that is called as similar. बेसिकली पहला 2-3 एक्सरसाइजेस में सिमिलैरिटी का टोटली बात ही नहीं हो रहा है. आफ्टरवर्ड सिमिलैरिटी कम्स. सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू गॉट ओवर हियर, दिस इज योर 4 प्रॉपर्टीज. इफ यू वांट टू डू योर फर्स्ट एक्सरसाइज you should know your 4 properties. Now what are that 4 properties? Now check bachcha log. Suppose this is your triangle. I'll draw over here all the way. For all of them I'll draw. This is one triangle. This is for the second one. This is your second triangle. This is your third property के लिए the triangles. This is for the fourth one, the properties के लिए ये triangles. Now what we do over here? Now bachcha log, everybody over here, all the triangles का name will take it as same. This is A, B, C. We'll take this as PQR, all the way it is same. Over here also this is ABC, this is PQR. Pay attention ना बच्चे लोग, प्रॉपर्टीज आना चाहिए. अगर आपको प्रॉपर्टीज आता है then only you can do your exercise. प्रॉपर्टीज मतलब like this is a ABCD for that particular chapter. This is what you get. हर एक like we go with this one. Everybody, all your triangles have got a height over here. This is your perpendicular height. This is your perpendicular height. ये परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ये दिस इज या परपेंडिकुलर. तो विल टेक दिस एज डी. पी क्यू आर विल टेक इट एज एस. दिस इज डी, दिस इज एस, दिस इज डी, दिस इज एस एंड दिस इज डी एंड दिस इज एस. नाउ चेक एवरीबडी व्हाट आर योर प्रॉपर्टीज सेज बच्चा लोग. एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट एंड एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय सिमिलर. What we do, your first property says that is the ratio. Ratio matlab this is what you do. The ratio of the areas of two triangle, that is area of triangle ABC upon area of triangle PQR. What is your basic formula for area of a triangle बच्चा? Half into base into height. तो you write this is over half into ये वाला base, that is over BC, into height is what is that? AD. इधर भी this is half into base for this triangle बच्चा. This triangle will be over QR into this is over PS. This half and this half is cancelled. So this is your first property. What do you say with your first property? This is the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product of its base and corresponding height. This is your first property which everybody should know. Everybody should remember. That is, again I repeat, the ratio of areas of two triangle is equal to the ratio of the product of base and its corresponding height. So this is your first property. Second property, let us see this triangles, ये दोनों भी triangles has got equal height. Have got क्या बोलेगा बच्चा? Equal height. यहाँ पे बोलेगा equal height, इधर बोलेगा they got equal बेस, और यहां पे बोलेगा दिस इज दे गॉट इक्वल बेस एंड हाइट. तो यहां पे फर्स्ट में कुछ भी सेम नहीं है. यहां पे उनका सपोज लाइक ये हाइट है, ये हाइट और ये हाइट सेम है. नेक्स्ट इसमें ये बेस और ये बेस सेम है, और थर्ड इसमें दैट इज फोर्थ इसमें ये बेस एंड हाइट इज सेम. नाउ बच्चा लोग अगर इक्वल हाइट है देन वी से दैट इज द एरिया ऑफ दैट इज सेम area of triangle ABC upon area of triangle PQR. Now क्या हो गया बच्चा लोग? What is same? Their height is same. So when you write same लिखो बच्चा लोग. Everybody देखो ये BC into AD upon QR.
into PS. Just now I said the height is same, that is AD and PS same है, तो this is AD और PS क्या हो जाएगा बच्चा, कट हो जाएगा. So this is what you get your property over here, that is if the triangles have equal height then the ratio of their areas is equal to the ratio of their corresponding height same है ना, then the corresponding base. So simple. मतलब basically अगर फर्स्ट अगेन बोल रहा है अगर बेस और हाइट कुछ सेम नहीं है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट. अगर हाइट सेम है तो बेस अपॉन बेस, और अगर बेस सेम है तो एवरीबडी नो व्हाट यू कैन से, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. नाउ इज सेम बच्चा, योर बेस इज सेम, तो बेस इज सेम तो यू राइट द हाइट्स ओवर हियर. तो हाइट विल बी व्हाट यू कैन से, दिस बिकम्स योर AD upon this is PS. This is your property number 3. Now go with your property number 4. Equal base और height दोनों भी same है बच्चा. This is area of triangle ABC upon area of triangle PQR. दोनों भी same है ना, then the ratio is 1:1. तो अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करना है बच्चा, इफ यू वांट टू डू योर फर्स्ट एक्सरसाइज, तो सिमिलैरिटी का दिस 4 प्रॉपर्टीज यू शुड नो. अगेन आई रिपीट बच्चा, फर्स्ट इसमें नॉर योर बेस नॉर योर हाइट इज सेम, देन वी से दैटफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट. यहाँ पे अगर हाइट सेम है देन वी से दिस इज बेस अपॉन बेस. अगर बेस सेम है then we say height upon height. अगर बेस भी सेम है हाइट भी सेम है then we say the ratio is 1:1. and keep in mind बच्चा लोग किसी का भी रेशियो 1:1 है तो you can say that is area of this triangle is equal to area of this triangle. So this is your properties what everybody should understand. अभी कैसा रहता है बच्चों लोग, व्हेन यू डू विथ योर ज्योमेट्री. नाउ फर्स्ट ये 4 प्रॉपर्टीज आएगा, देन योर एक्सरसाइज विल कम, द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आएगा, देन योर सेकंड एक्सरसाइज विल कम. सो क्या करो मालूम है, जब भी ये टाइप का चैप्टर्स करते हो ना बच्चा लोग, फर्स्ट 2-3 पेज है ना एम्प्टी रखो. फर्स्ट 2-3 पेज में ना बच्चा लोग ओनली ये प्रॉपर्टीज लिखो एंड देन एक्सरसाइज आपका 3rd और 4th पेज से चालू करो. नाउ वंस आई विल फिनिश दिस प्रॉपर्टी आई विल डू विथ योर एक्सरसाइज, then I'll go with your next property, then I'll do with your exercise. तो first 2-3 पेज में ना only properties रखो. तो when you go for your board exam, when you go for your school exam, अब पहला property go through करोगे ना, then it is very easy. Then what do you do with your exam? जब exam में जाते हो ना बच्चा, पहला properties पहाड़ करके रखने का, and then जब example आता है then you should think कि कौन सा properties I have to use to solve this sum. अगर आपको properties आता है बच्चा, if you can do that properties, then you can do your geometry का this type of sums very easily. Okay, now check with the exercise 1.1, the first sum. Again I repeat, properties याद रखो, you can do your exercise 1.1 very easily. See, check what they are given. Base of a triangle is 9 centimeter and height is 5 centimeter. फिर दूसरा triangle है, तो we can say over here that is for the first triangle. It's very simple. You can say over here that is for the first triangle. What they are given बच्चा लोग, that is the base is equal to how much, 9, and the height that is equal to 5. Then we get over here base of another triangle बच्चा लोग, what they are given, base of the another triangle is 10 and the height is, that is for the second triangle, the base is equal to how much is the base बच्चा, that is 10, and the height that is equal to 6. What do you have to find the ratio. Ratio बोलेगा तो बच्चा division. Find the ratio of the areas of two triangle. Nor can you say nor your base is same nor your height is same. So we can write your property, that is since the ratio of areas of two triangles is क्या लिखेगा बच्चा, equal to the ratio of product of its base and क्या लिखेगा बच्चा, corresponding height. तो दिस प्रॉपर्टी आप लोग लिख लो, बिकॉज बाकी कुछ है ही नहीं. तो वी कैन से दैट इज द एरिया, वी आर नॉट गिवन इन नेम्स ओवर हियर, तो वी कैन से दैट इज एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल upon you can say this is over here, that is the area of the second triangle is equal to इसका base into height upon again base into height. Now check everybody for the first one, red color में, what is base into height, that is 9
into 5, blue में it is 10 into 6, do your normal calculation, 5 1s are 5 2s are 3 2s are 3 3s are. So what is your ratio बच्चा लोग? The ratio is how much बच्चा लोग? That is 3:4, and this is how you have to do your first sum. Now check with your sum number 2. I said it's very simple. Now check with your sum number 2. This is what they are given a diagram over here. They are given over here, that is BC. This is your BC is perpendicular to AB. यहाँ पे this is 90 degree. This is also perpendicular over here. BC की तरह बच्चा, this is equal to 4. You got to AD, this is equal to 8. और यहाँ पे देखो, you have to find the area of this triangle ABC upon area of this triangle. तो हो गया. It's very easy. You'll write over here that is solution. And we say that is since a triangle, बच्चा लोग यहाँ पे लिखो ABC. This is your triangle ABC and triangle ADP. Check करो have a common. Now बच्चा लोग everybody over here, you can go this one. This is your common. क्या बोलेगा बच्चा? Have a common base, and therefore we can say this is area of triangle ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADP. बच्चा क्या है? कॉमन क्या है? बेस कॉमन है ना, तो यू कैन राइट हाइट. तो ये ब्लू वाले का हाइट इज BC और इसका हाइट इज हाउ मच बच्चा? दिस इज AD. एंड यू कैन राइट अ रीजन ओवर हियर, ट्राइंगल्स हैविंग क्या लिखेगा बच्चा? कॉमन बेस. हो गया BC, दे आर ऑलरेडी गिवन. दिस इज 4, ये हो गया 8. एंड सिंपल बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा कितना मार्क्स? दैट इज 2 मार्क्स सिर्फ इतना प्रॉपर्टी लिखने के लिए. दैट इज अपॉन ADB एंड दैट इज इक्वल टू 1/2. दैट्स ऑल. मतलब बेसिकली आपको प्रॉपर्टीज जाना है. सो दिस इज योर सम नंबर 2. नाउ चलो चेक विथ योर सम नंबर 3. बिफोर डूइंग विथ योर सम नंबर 3 तुम लोगों को मैं एक बेसिक्स पढ़ाता हूँ. पे अटेंशन. ना बच्चा लोग, इफ यू चेक विद दिस ट्राइंगल, बच्चा लोग ये अगर ट्राइंगल देखो ना, तो दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. तो इसका जो हाइट है ना बच्चा लोग, इसका हाइट वो अंदर होता है, तो दिस इज योर हाइट. बट अगर ये ट्राइंगल देखो ना बच्चा, ये ट्राइंगल, तो दिस इज योर ऑब्ट्यूज एंगल. ये तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल है. तो इसका हाइट किधर है? सम ऑफ देम ड्रॉ. ये हाइट है. अरे नहीं रे बच्चा, दिस इज नॉट योर हाइट. हाइट बोलेगा तो क्या? सपोज ऐसे एक बिल्डिंग है और आप लोग यहाँ पे है, अगर कुछ नीचे गिराओगे तो क्या ऐसा गिरेगा? नहीं ना, इट विल फॉल डाउन परपेंडिकुलर ओवर हियर. तो ऑब्ट्यूज एंगल रहता है ना बच्चा लोग, उसका हाइट है ना इज ऑलवेज आउटसाइड द ट्राइंगल. नाउ चेक विद दिस सम ओवर हियर गिवन. दे आर गिवन दिस PS, एवरीबडी ओवर हियर. दिस PS is perpendicular to RQ over here. This QT, this is over here perpendicular to RP. RQ, this is equal to 6. PS, this is equal to again 6. This PR is equal to 12, and what we need to find is how much is QT. Now check everybody, how will you do this sum? Now everybody over here. Now है ना बच्चा लोग, अगर ये ट्राइंगल है, ये this ट्राइंगल, ये ट्राइंगल को ना बच्चा अगर यहां से देखते हो तो V, चलो पे अटेंशन, द सॉल्यूशन. सो एवरीबडी प्रॉपर्टी बाद में लिखता हूं मैं. V से दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल? ये PQR. What is the area of triangle? That is PQR upon, चेक करना बच्चा लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल. वापस PQR ही लूंगा. नाउ व्हेन यू टेक द फर्स्ट PQR, योर बेस एंड हाइट इज डिफरेंट. बच्चा लोग, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल को ऐसा रखो, वही ट्राइंगल को घुमा के ऐसा करो, वही ट्राइंगल को घुमा के ऐसा करो, कैसा भी घुमाओ बच्चा, द एरिया विल बी द सेम. तो what happens over here when we go with this area of this triangle is half into base. ये है, you are going this way, तो base is this, that is you say this is over here RP into height. तो height वो corresponding base के साथ ही रहेगा, that is you say this is QT. And when you go with this, अभी ये नहीं, अभी ये triangle obtuse, that is in triangle, this is RPQ. ये PQR लिखो तो भी चलता है, और we write this is RPQ. तो ये height and base is changed. नाउ पे अटेंशन बच्चा, बेस, ये ट्राइंगल बोला मैंने, तो ये ट्राइंगल में डोंट गो हियर. दिस इज योर बेस, दिस इज नॉट योर बेस. इसके ऊपर ट्राइंगल खड़ा है, इसके ऊपर ट्राइंगल खड़ा नहीं है बच्चा, तो ट्राइंगल इज स्टैंडिंग ऑन दिस. सो यू गेट दिस इज ओवर योर RQ इनटू हाइट इज दिस, बिकॉज दिस इज योर ऑब्ट्यूज एंगल. तो दिस इज PS. यू कैन राइट द सेम प्रॉपर्टी, पहला सम में लिखा था वही. That is the ratio of the areas of two triangle
is equal to the ratio of the product of its corresponding base and its height. This PQR and PQR is cancelled, so you get this is 1 upon 1. RP is already there, that is 12. QT we are supposed to find, that is QT. RQ this is 6. PS is again 6. Do your cross multiplication, this is 6 into 6 upon 12 is equal to QT. 6 1s are 6 2s are 2 1s are 2 3s are, add हो गया बच्चा, and how much you get over here, that is QT is equal to 3. So you get your answer 3, and this is your sum number 3. Now check with your sum number 4. Sum number 4 में क्या दिया है बच्चा लोग, AP is perpendicular, this is your AP, this is perpendicular to BC. ये वाला लाइन आपका AD, pay attention, is parallel to what you get over here, this is BC. Then you have to find what is the ratio of area of triangle ABC. So this is your triangle ABC. I'll do it with blue color. That is area of triangle ABC. This dark blue, A, B, and C over here. This triangle, and the other one I'll do with black color. That is area of triangle BCD. ये ठीक है. We have to find out what is the ratio of this areas. Now चलो pay attention everybody over here with your solution. ना बच्चा लोग अगर प्रॉपरली देखोगे ना तो दोनों ट्राइंगल्स, अगेन आई ड्रॉ, ये और ये पैरेलल है, ये ट्राइंगल बराबर ऐसा है और दूसरा ट्राइंगल समथिंग ये बराबर ऐसा है. सो बोथ द ट्राइंगल्स दे लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस. सो व्हेन वी से बच्चा दिस इज योर पैरेलल लाइन, तो व्हेन यू लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, तो बच्चा ये दिस इज योर परपेंडिकुलर. रेलवे ट्रैक आपने देखा रहेगा, रेलवे ट्रैक का दैट इज व्हाट यू कैन से योर ट्रैक्स आर परपेंडिकुलर, दैट दे आर पैरेलल, तो उनके बीच में ऐसा एक लाइंस दैट इज what you can say some bar types are placed over here. So this distance is always the same, that is if two lines are parallel, these are parallel, the distance between them is same. So we write over that is since a triangle ABC and we say that is triangle BCD lie between, क्या लिखने का बच्चा, lie between parallel lines, therefore triangle ABC and triangle BCD have, क्या बोलेगा बच्चा, equal height. बिकॉज अगर बच्चा लोग यहां पे चेक करो, इसका हाइट तो ऑलरेडी ड्रॉ किया, आप इसका भी ड्रॉ करोगे ना, ये भी ड्रॉ करोगे ना, तो वट एवर इज दिस सेम विल बी दिस, बिकॉज दैट लाइज बिटवीन पैरेलल लाइन, दैट्स व्हाई वी रोट हैव अ इक्वल हाइट. और अगर प्रॉपरली और एक चेक करोगे ना बच्चा लोग, ये देखो ये BC. नाउ इफ यू चेक विद दिस BC, ये ब्लू ट्राइंगल का भी बेस वही है, ये ब्लैक ट्राइंगल का भी बेस वही है, एंड देन अगेन वी कैन से दैट इज सिंस ट्राइंगल ABC and triangle BCD have a common base, ठीक है, तो उनका हाइट भी सेम, बेस भी सेम है, एंड देयरफॉर विल यूज दैट प्रॉपर्टी जो अभी आज मैंने आपको फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ाया था, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. व्हाट डिड आई से, दैट इज 1:1. So you can write over here that is triangles having equal base and height. So this is how you have to do your sum number 4. That is what I said बच्चा लोग कि आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज बराबर से आना चाहिए, and then you should make out कि triangles कौन सा है, then you can do this exercise very nicely. I hope everybody understood this sum number 4. Now check with your sum number 4. ये ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे ना ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. तुम लोग को मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ. मैं जब 12th में था, हम लोग जब व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, तो वी हैड डिसेक्शन बायो में, वी हैड डिसेक्शन फॉर अर्थवर्म. तो अर्थवर्म आप लोग देखा रहेगा, बहुत छोटा सा हल्का सा एकदम छोटा सा रहता है. तो मेनी अर्थवर्म्स वर ब्रॉट ओवर दैट. अंदर हमारे टीचर ने क्या किया, बाउल में अर्थवर्म लिया. ठीक है, आई विल शो यू व्हाट आवर टीचर डिड. शी टुक बाउल में ऐसा अर्थवर्म्स लिया और अर्थवर्म्स पूरा ऐसा 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 घुमाते गया. तो शी सेड व्हेन आप लोग साइंस ले रहे हो तो यू शुड नॉट फील लाइक शीशाई नहीं करने का, तो अर्थवर्म है तो अर्थवर्म है, तो उन्होंने और जो भी है लाइक यू शुड डू इट. तो उन्होंने अर्थवर्म को ऐसे ऐसे घुमाया और ऐसा चाट लिया. तो हमको बोला कि यू ऑल्सो डू दैट.
हम लोग बोला ऐसा नहीं कर सकते, तो टीचर ने बोला लाइक यू आर टेकन साइंस लिया है तो फिर ये अर्थवर्म्स देन फ्रॉग्स देन कॉकरोचेस, इससे डरोगे, हाथ में लगाओगे तो कैसा चलेगा। तो एवरीबडी स्टार्टेड मेकिंग नखरा, नहीं 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 टीचर, थोड़ा जन ने फिर बोला चलो टीचर बोल रहे तो कर लेते हैं। तो शी डिड अगेन आई रिपीट, ऐसा ऐसा घुमा दिया और शी देन चाट लिया उसको। सो एवरीबडी ऑल्सो डिड द सेम थिंग। देन टीचर ने बोला योर ऑब्जर्वेशन वॉज नॉट ओके। टीचर ने क्या किया, ये फिंगर रखा और ऐसा ऐसा इसको घुमा दिया और चाटते समय ये फिंगर नहीं चाटा, ये चाटा। तो वेन एवर यू डू ज्योमेट्री ऑल्सो ना बच्चा लोग, ये ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग। अगर आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया देन यू विल गो रॉन्ग। तो ऑब्जर्व द फिगर वेरी आराम से कि क्या पूछा है, क्या लिखने का है, देन राइट। नाउ चेक एवरीबडी ओवर विद दिस सम। You got how many ratios you have to find? You have to find a lot of ratios over here. So पहला ratio is PQB upon PBC. PQB ये triangle upon PBC. PBC. I'm not making colors because बहुत सारा तो बहुत colors हो जाएगा. Then also I'm telling this छोटा वाला और ये बड़ा triangle. दोनों triangles में क्या same है? देखो वापस everybody. If you want check again over here. This is your triangle P. ये देखो ये PQB ये small वाला and your triangle PBC. If you check now both of them have got a common height. तो हो गया बच्चा लोग। तो first one you can see that is since a triangle PQB and triangle PBC, तो that is your observation should be very बराबर से ऑब्जर्व करो, अदरवाइज आप लोग फिर अर्थवर्म चाट लोगे। So what we get, PQB and PBC have a common, क्या बोलेगा बच्चा, दैट इज हाइट एंड एवरीबडी हो गया। द फर्स्ट वन यू कैन से दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। हाइट सेम है ना बच्चा, तो आपको बेसेस लिखने का। तो PQB का बेस क्या है बच्चा, दैट इज योर बेस इज PQ और बड़ा वाला ट्राइंगल का बेस क्या है BC। रीजन लिखो यहां पे, दैट इज ट्राइंगल्स हैविंग और दैट बच्चा इक्वल, क्या सेम था, हाइट। हो गया फर्स्ट वन। नाउ चेक एवरीबडी विल डू द सेकेंड वन। व्हाट इज द सेकेंड वन में, ये ट्राइंगल PBC वो बड़ा वाला एंड ABC, दिस इज PBC इज ये बड़ा, ये वाला, ठीक है, दिस बिग वन एंड ABC। अगेन बच्चा लोग चेक करो क्या सेम है, वापस देखो बच्चा, PBC ABC, PC is same. So we say that is since triangle PBC and triangle ABC have a, क्या आ गया बच्चा, common क्या है, base, and therefore we can say this is area of triangle PBC upon area of triangle ABC. What is same बच्चा, base is same ना, तो height, ये PBC का height का नाम क्या है बच्चा, that is PQ और ABC का हाइट का नाम क्या है AD और यहां पे आ जाएगा ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल, क्या आ गया बच्चा, दिस इज बेस। हो गया सेकेंड वन। नाउ चेक द थर्ड वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन ADC। वापस हो रहा है ABC ADC ABC ADC, क्या सेम है बच्चा, if you check their heights are same, देखो ये सेम है। so again we say that is since triangle ABC and triangle ADC have a common, क्या सेम है बच्चा, height। अगर height सेम है तो you can say this is area of triangle ABC upon area of triangle ADC, क्या सेम बच्चा, height ना, तो बेस लिखो, ABC का बेस क्या है बच्चा, दैट इज BC एंड ADC का बेस क्या है DC। यू कैन राइट ओवर हियर ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल और कॉमन हाइट, ठीक है। नाउ चेक विथ योर लास्ट वन, ADC एंड PQC। Now बच्चा लोग ADC, अभी लास्ट है इसलिए I'll do this. This is ADC and if you check the other one is PQC ये। Now बच्चा लोग ये ब्लू और रेड में क्या सेम है बच्चा,
कुछ भी सेम नहीं, if you observe nothing is same, तो you'll write that property, everybody will write the property, that is since the areas of two triangle, that is since the ratio of the areas of two triangle is, this is the ratio of the areas, सुनो, the ratio of the areas of two triangle is equal to the ratio of product of its corresponding base and height. तो ADC ब्लू कलर का बेस इंटू हाइट, व्हाट इज दैट बच्चा, दैट इज DC, ठीक है, इंटू हाइट इज व्हाट बच्चा, दैट इज AD, एंड अपॉन ये रेड कलर का इसका बेस दैट इज QC इंटू हाइट इज PQ. So this is how everybody you have to do with your last sum. So this was exercise 1.1. नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरम दैट इज कॉल्ड एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम. बोर्ड एग्जाम में ना 3 थियरम्स स्ट्रॉन्ग करके जाने का, ये 3 थियरम्स में का ये आता है. वन इज योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, वन इज योर, एक आप उसमें का डिलीट हो गया अभी, एंड वन इज योर द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. ये आपका चैप्टर नंबर 3 में आता है. ये 2 थियरम में का ही आपको 99% इसमें का ही थियरम्स आएगा. So in the next video when we'll start, we'll do first that is basic proportionality theorem. So finish with your exercise 1.1. I hope everybody understood with your 1.1. Again I repeat, पहला 2-3 पेज में खाली रखो, उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखो, 3rd-4th पेज से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकता है. So finish with your video over here. Till then, bye bye, tata, take care.